द कंटेस्ट बाय एनी प्रोलक्स, मतलब जो ये स्टोरी है कंटेस्ट, और इसकी राइटर है ई एनी प्रोलेक्स, मतलब एडना एनी प्रोलेक्स। अगर इसकी पहले इंट्रो पे चलें तो इंट्रो में क्या बात की गई है। ई एनी प्रोलेक्स इन full, Edna Annie Prolex was born on August 22, 1935 in Norwich, Connecticut, USA. She is an American writer whose darkly comic yet sad fiction is peopled with quirky, memorable, individual and unconventional families. मतलब कि ये अमेरिकन राइटर है और इनकी जो राइटिंग है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, मतलब वो ज़्यादा क्या चीज़ लिख रही हैं। एक तो वो बहुत फनी, मतलब कॉमिक लाइक, जिसको चीज़ को आपको देख के या पढ़ के आपको मतलब आप हंस जाओ ऐसी चीज़, या फिर ऐसा अगर वो बेशक मुज़य्या भी है लेकिन उसमें एक इस तरह का वो सैड फिक्शनरी बनाई गई है, मतलब जिसमें लोगों के बारे में, उनकी फैमिलीज के बारे में, मतलब वो एक तरह का उनकी पूरी स्टोरी से ये बातें मिलती हैं। Rolex traveled widely, extensively researching physical background and locals. She frequently used original speech, attempted surprising and scathing language, an unusual plot twist in her novel, and short stories about disintegrating families who maintain attachment to the land. मतलब कि इनका जो बेसिक वही है कि ये डिफरेंट जगह घूमती रही हैं और वहाँ के मतलब लोगों को देख के, उनके नॉर्म्स और कस्टम देख के कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनका इस लैंड के साथ क्या अटैचमेंट है जहाँ वो रह रहे हैं, जिन भी एरिया में रह रहे हैं, या फिर उनकी जो फैमिलीज है उनकी आपस में क्या मैटर है, उनकी लैंग्वेजेस क्या है। तो ये अपने एक तरह का पूरी जो लाइफ है ना, जो रियल लाइफ है, तो उसको एक्सप्लोर कर रही है। Annie was educated at the University of Vermont. She did her BA in 1969. She also joined Sir George William University, Montreal, Canada, and did MA in 1973. She settled in northern Vermont and later in Wyoming. She lived close to the land, about which she wrote frequently in freelance articles for such magazines as Gourmet. मतलब कि ये वो उसी एरिया के पास रह रही थी जिसके बारे में वो मेनली फ्रीलांस आर्टिकल में लिखती रही है। जो मतलब वही बात है ना कि ज़्यादा उन ज़मीनों के बारे में वहाँ मूव करके कि वहाँ के लोग कैसे, उनके बारे में लिख रही थी। तो जहाँ जिसके ज़मीन के बारे में इसने बहुत ज़्यादा लिखा, जिस लैंड के बारे में, तो वो इसी के करीब ही खुद भी रहती थी। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन Her Song and Other Stories, Prolix turned to writing novel which better accommodated her sense, plot and complex characterization। वही बात की पहले स्टोरी से फिर इसने नॉवल लिखना स्टार्ट कर दिया। Her first novel, Postcard, uses the device of picture postcard mailed from the road over 40 years' time to illustrate changes in American life. The postcards are sent by loyal blood who accidentally kills his girlfriend and abandons his and their meager Vermont farm, escaping to a life of picturesque adventure. Her second novel, The Shipping News, the protagonist, Cole, and his family, consisting of two young daughters and his aunt, leave the United and settle in Newfoundland, Canada, after the accidental death of his unfaithful wife। मतलब ये सिंपल जो जो इन्होंने नॉवल लिखे उस नॉवल पे उन्होंने वो नॉवल किसके बाद लिखी या फिर उस नॉवल में क्या मेन बात की गई है वो बताया जा रहा है। द शिपिंग न्यूज वॉज अवॉर्डेड बोथ अ पुलित्जर Prize and a National Book Award. Prolix's next novel was Accordion Crimes, which examined the immigrant experience by tracing the life of an old world accordion in the United States. Close Range Wyoming Stories is a collection of stories set in the harsh landscape of rural Wyoming. It includes Brokeback Mountain, the story of two ranch hands, Jack Twist and Anis Delmar, whose friendship becomes a sexual relationship during a summer spent tending sheep in the 1960s. Afterward, they pursue the traditional heterosexual lives expected of them but experience a lifetime of longing for each other, originally published in the New York magazines in 1997. In 2002, Rolex published the novel That Old Ace in the Hole, about a man who scouts the Texas Panhandle for land to be acquired by a major corporation. Bad Dirt, Warming Stories, and Fine Just
The Way It Is, Warming Stories 3 are collection of short stories in the memoir Bird Cloud. Prolix chronicled the building of her home in Warming. The novel Bark Skins charted the wide-reaching ramifications of deforestation through the story of two Frenchmen who arrived in New France in 1693 and worked as woodcutter in exchange for land. The novel traces their vicissitudes and those of their descendants, many of who remain involved in the timber industry into the 21st century. इसमें बस उसकी जो उसने जो नॉवल लिखे है उसमें वो क्या चीज़ बातें कर किसके बारे में बात की जा रही है और सेकंड जो मतलब उसके नॉवल हैं और ऊपर जो उसकी दो तीन और के बारे में बताया गया है जो उसने लिखी थी स्टोरीज और नॉवेल्स लिखे थे मतलब एक तरह का उसका इंट्रो है कि उसने किस ईयर में क्या लिखा और उसको उसकी बेस पे क्या प्राइज मिला और वो उस जो नॉवल लिखी उसमें मेन बात क्या की जा रही है। अब जो मेन चीज़ है वो समरी है, जो स्टोरी की समरी है जो कि हमारे पास है स्टोरी द कॉन्टेस्ट। इसमें वैसे जो बात की गई है वो एक टाउन के बारे में बात की गई है जो एल्कटूथ के नाम से मशहूर था, मतलब उसका नाम उस टाउन का नाम एल्कटूथ था और वहाँ के जो लोग थे वो बहुत लिटरेट बैकवर्ड लोग थे, मतलब उनका जो टाउन था वो बहुत ही आइसोलेट था। उसके आसपास भी कोई किसी किस्म का ना टाउन था ना ही कोई सिटी थी और एक तरह से वो अपने आप को ऐसा ही कंसिडर करते थे कि उनका किसी के साथ भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और वो फिर अपना ही और सेकंड एक किसी के साथ कनेक्शन नहीं और दूसरा कि उस टाउन के जो अपने लोग हैं उनका आपस के दरमियान की जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही कम थी। और इसमें फिर एक वो बात की जा रही है कि जो यहाँ एक कॉन्टेस्ट करवाया गया था, एक कंटेस्ट करवाया गया था मतलब कि इन्होंने एक फ़नी भी उसको फ़नी वे में भी लिया और उसमें भी कि इन्होंने मतलब कि जिसकी सबसे बड़ी बियर्ड होगी तो मतलब सबको अपनी बियर्ड बड़ी करनी थी और जिसकी सबसे बड़ी होगी उसको प्राइस दिया जाएगा। अब वो उस जो ये कंटेस्ट था अब जिसके बारे में ये था उसमें बहुत से जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स थे उनने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने इसको बहुत सीरियस लिया। अब वो उसके बारे में बोल रहे हैं कि अब उस कंटेस्ट की वजह से लोग जो थे वो भी इस कंटेस्ट को एक तो फनी वे भी ले रहे हैं और एक यूनिटी के सिंबल के तौर पर भी ले रहे हैं कि इसके थ्रू बहुत से लोग आपस में मिले और उन्होंने इसको बहुत सीरियसली उनकी आपस में कम्युनिकेशन हुई। ऑल्दो ये बहुत ही ट्रिवियल मतलब माइन्यूट थी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन उन्हें फिर भी इसको इतना सीरियस लेके अपनी उस चीज़ पे लगे कि अपनी बियर्ड बढ़ाते गए, मतलब हर एक को यही था कि वो प्राइस जीत जाए। और दूसरा ये कि फिर उनको इसके बाद ये भी अंदाज़ा हुआ कि वो आइसोलेट नहीं है, इनका जो बाकी टाउन के साथ रिलेशन है वो भी है, मतलब उनका कनेक्शन है किसी न किसी तरह में। तो क्योंकि इसमें ये हुआ था ना कि जो उसके अपने लोग थे अभी जो कंटेस्ट था वो ख़त्म नहीं हुआ था कि एक जो आउटसाइडर आया था जिसकी बहुत ही मतलब उन सब से एक लग्जीरियस मतलब बियर्ड थी और बहुत ही मतलब उसकी लेंथ भी सबसे ज़्यादा थी। मतलब एक आउटसाइडर आके वो कंटेस्ट जीत गया था। उसमें एक तरह का उन्होंने ये मैसेज दिया हुआ है कि अगर आप देखो जो आपस के वहाँ के इनहेबिटेंट थे उनमें से जो एक था वो बेस्ट था, ठीक है, मतलब कि वो विन कर रहा था। लेकिन हमेशा ये होता है कि आप जितना भी एक तरह होता है ना कि आप सब बहुत बेहतर हो जाओ लेकिन आपसे बेहतर भी कोई ना कोई होता है और भी। यहाँ भी वही बात की है कि हाँ ये था कि वो अपना जो उस टाउन के अंदर वो कंटेस्ट किया जा रहा था और उसमें से एक ने विन करना था लेकिन एक आउटसाइडर आया और वो विन कर गया। मतलब वो जो पहले से विन कर रहा था बेशक वो अपने ही इलाके के लोगों में बेस्ट था लेकिन उससे ऊपर मतलब भी बेस्ट कोई है, वो ये एक थीम दिया जा रहा है इसमें। अब इसकी अगर रीडिंग करो तो इसमें क्या चीज़ लिखी हुई है। The Contest by Annie Prolex is a short story from the Bad Dirt Collection। अब ये जो ऊपर भी बात की गई है ना कि जो बैड डेट कलेक्शन इसकी एक कलेक्शन मतलब इसमें डिफरेंट स्टोरीज अंदर डिफरेंट बताई गई है। एक तरह का ये कलेक्शन है इसकी जिसको बैड डेट कलेक्शन नाम दिया गया और उसमें जो डिफरेंट स्टोरीज उसमें लिखी हुई है अब उसी में से एक स्टोरी निकाली गई है। अभी जो स्टोरी है बाय एनी शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम द बैड डेट कलेक्शन पब्लिश्ड इन 2004। The story belongs to the comical class and makes a great case study in a satirical anti-climax. The story opens in a little town, Elktooth, in a Western American. It is a story of rural class. The population of the town is about 80, मतलब बहुत ही छोटा सा ये था जिसकी population सिर्फ 80 people पे थी.
There are three bars as well for recreation of the inhabitant. The bar names are Setvertip, the Peewee, and the Muddy's Hole. The people of the town wanted some change, so they decided to arrange a competition of growing beard. मतलब वो भी बता दिया कि 80 पॉपुलेशन थी और वहाँ 3 बार्स थे और बार्स के नाम क्या थे वो भी बता दिए। और सेकंड कि वो जो लोग थे टाउन के वो कुछ अलग करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि कंपटीशन करवाया जाए। और कंपटीशन क्या था? कंपटीशन ऑफ ग्रोइंग बियर्ड। द पर्सन हु वुड हैव अ लॉन्ग बियर्ड वुड बी द विनर। सो the all contestants start letting their beard grow longer. The progress in length of the beard is checked on the daily basis. They are of the view that the longer the beard, the better the person is. There is an inhabitant named Bilde Silhort who is the owner of the most books in Elktooth, and he is well educated. He has long beard as well. Similarly, with Ralph Cobb, who is also well educated, has the longest beard. The presence of books show that the town is not isolated as a whole. There is outer connection as well. इसमें दो नाम लिए गए, एक नाम है बिल्डे सिलहुट और सेकंड है राल्फ कप। अब ये जो दो थे, वैसे जो बात की है ना कि वहाँ के जो अपने इनहेबिटेंट थे वो इलिटरेट थे। अब जो ये दो लोग थे ना, तो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि ये वहाँ के अपने ही मतलब लोग नहीं थे, ये आउटसाइडर थे, वहां से आए हुए थे। और इसमें से जो ये था, ये जो बुक्स वाली बात की गई है, सिलहुट मतलब कि वो बहुत सी बुक्स का ऑनर था, क्योंकि जो ये बुक्स थी लाइक ये प्रिंट किसी और कंट्री में की जा रही थी और आके सेल मतलब यहाँ की जा रही थी, मतलब एक तरह का कनेक्शन था। अब जो ये बुक शो था वो ये चीज़ शो कर रहा है कि जो वहाँ के लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो ये एल्क टूथ है इसका कहीं और किसी वर्ल्ड की किसी और पार्ट से कनेक्शन नहीं है, वो गलत है। क्योंकि इन बुक्स के थ्रू उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बन रहा था, मतलब लोग आपस में कनेक्टेड थे उन बुक्स के थ्रू। और सेकंड जो राल्फ कल्प है वो भी एक एजुकेटेड पर्सन था। The presence of books show that the town is not isolated as the whole. There is outer connection as well. Before the contest is over, a newcomer arrive. वही बात है कि जो बात की थी कि अभी जो contest था वो खत्म नहीं हुआ था, कि एक newcomer मतलब कि एक नया बंदा आया बाहर से। The guy's beard is luxurious to a comical degree. The men agree that the contest is over. The story concludes that how good you may be, there is always someone who is better. The beard competition not only connect those who live in the town, but it also build a community spirit. Ralph Cobb character may also symbolize the Ralph beard knows that he is beaten and that others are beaten too. मतलब कि पहले में जो था शायद राल्फ का जीत रहा था, उसकी जो बियर्ड थी सबसे बड़ी थी, ठीक है, लेकिन जो न्यू आया और उसकी बियर्ड इतनी मतलब बड़ी थी और एक लग्जीरियस भी थी और मतलब शाइन वाइन वो नीचे ऐसा लिखा हुआ था कि उसने जो रात कल्प की बियर्ड थी उसको बीट कर दिया, मतलब वो जीत गया। और सेकंड के जो और इनहेबिटेंट थे वो भी हार गए और ये जीत गया। अब ये जो ऊपर ये वाला थीम पेश किया जा रहा था ना कि वो बहुत आइसोलेट है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि जो ये कंटेस्ट किया जा रहा था उसमें एक आउटसाइडर भी आ गया था और वो जीत भी गया था। लाइक उनमें एक कनेक्शन बचा हुआ है, मतलब वो कनेक्शन है एल्टूथ का दूसरी कंट्रीज की दूसरी सिटीज के साथ भी। और दूसरा वो कि उन्होंने क्या किया, सेकंड ये भी बात की है कि उन्होंने आउटसाइडर को एक्सेप्ट किया, मतलब उनको अपने कंटेस्ट में डाला और फिर उसने जो अपनी शिकस्त मानी और उसको मतलब विन करवा दिया कि हाँ ये बंदा जीते क्योंकि इसकी बियर्ड सबसे बड़ी है। इसमें ये बात की कि अगर नीचे इसकी मेन थीम वाले पॉइंट में आओगे ना कि इसके मेन थीम क्या क्या है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें वो सारे बताएंगे कि पहले एक तो आइसोलेशन के, ये जो आइसोलेटेड के जो ये सबसे पहले राइवलरी के आप इतना के दुश्मनी पाल देते हो, मतलब कि हर जो पार्टिसिपेंट था वो राइवलरी फेस कर रहा था, मतलब कि कुछ तो लोग इस कंटेस्ट को ही अपोज कर रहे थे। और दूसरा ये कि मतलब अच्छा पहला पहला जो थीम है वो राइवलरी के कि मतलब उन्होंने पहले डिसाइड किया कि जो ऑर्गेनाइजर थे जो इसे ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये कंपटीशन रखवाएंगे, लेकिन बहुत से इसके ओपोनेंट्स थे,
मतलब जो अपोज कर रहे थे कि ये कंटेस्ट ना करवाया जाए, और फिर जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्हें वो राइवलरी फेस करनी पड़ी थी जो उसको अपोज कर रहे थे। और सेकंड थीम आइसोलेशन का बताया गया है कि जो एयरटूथ था वो आइसोलेट था क्योंकि वो एक अबेंडन प्लेस थी, और उसके आसपास भी मतलब कोई भी मतलब ना सिटी थी ना कुछ थी, वो इसी तरह कंसिडर किया जाता था कि जैसे ये एक अलग से प्लानट है, ठीक है। और मतलब कि वहाँ के लोग अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे जैसे भी वो गुजारना चाहते थे, लेकिन लास्ट में बता दिया कि एक न्यू कमर आ जाता है, वो यही फिर उससे ये चीज़ प्रूफ होती है कि ये आइसोलेटेड नहीं है। सेकेंड के कनेक्शन की बात की गई है कि वही कि जो इनहेबिटेंट थे वो बहुत आइसोलेटेड थे और उनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं था। और लेकिन जो बुक्स वाली बात की गई है कि उन बुक्स के थ्रू वो एक कनेक्शन बढ़ा लोगों के बीच, और डिटर्मिनेशन का कि वो लोग थे ना जो पार्टिसिपेंट थे, जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो बहुत डिटर्मिनेंट थे। मतलब कि वो अपने उसके साथ इस तरह जुड़ गए थे, उन्होंने उसको ऐसे सीरियस लिया था, लाइक उनके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रख रहा था कि उनका जो विन करना, मतलब वो उसमें उस तरह पार्टिसिपेट कर रहे और डेली बेसिस पे अपनी बियर्ड को चेक करवा रहे, और इस तरह ये बात जो डिटर्मिनेशन की बात की गई। फिर एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस की बात की गई कि वहाँ के जो लोग थे वो इलिटरेट थे और उन्होंने बहुत सी ये ट्रिवियल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व किया, लेकिन जो सिलहोट एंड राल्फ थे वो वेल एजुकेटेड थे और उन्होंने भी उस कंटेस्ट में पार्ट लिया। लाइक कि सिर्फ इलिटरेट उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बल्कि जो एजुकेटेड पर्सन थे वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे। और दूसरा कि वही कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था अपनी हार को एक्सेप्ट किया था, और जो न्यू कमर था उसे वेलकम बोला, और उससे अगर वो विन हुआ तो उसमें भी उन्होंने कोई अपोज नहीं किया उसे। और ये मतलब इसके मेन थीम ये बताई गई।